नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर क्यूज 20 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विच इज बीइंग सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ these statements are correct? Question number 2, which of these Indian airports have been approved by the Union Cabinet recently for leasing to a private company? Question number 3, with respect to the National Payment Corporation of India, which of these statements are correct? Question number 4, National Teleconsultation Service of Ministry of Health and Family Welfare has started an e-service for OPD, Outpatient Department. What is its name? Question number 5, promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. In which act or code of Government of India you can find this statement? Question number 6, in which of the following Arab country Baraka nuclear power plant, the first nuclear power station in the Arabian Peninsula and the first commercial nuclear power station in the Arab world located? Question number 7, whose birth anniversary is celebrated as Sadbhavana Divas every year on 20th of August? Question number 8, who has been sworn in as the 54th President of Dominican Republic? Question number 9, consider the following statements with respect to Election Commission of India. Which of the statements given is or are correct? Question number 10, which of the following does not come under original jurisdiction of the Supreme Court? तो हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है। चलिए देख क्वेश्चन नंबर 1, with respect to the national recruitment agency which is being set up by the government of India, which of these statements are correct? देखो ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एंड 4 चारों सही है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में आज ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ है, देखते हैं वो क्या है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. It will be headed by a chairman of the rank of secretary to the government of India. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी माना जाएगा और ये रजिस्टर करेगा कौन से एक्ट के अंदर? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का एक एक्ट है। अब देखो इसमें सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी मतलब एक से ज़्यादा पर्सन या कंपनी जब म्यूचुअल कंसर्न में कोई डेफिनेट पर्पस के लिए एक्ट करते हैं तो उसको सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सोसाइटी है। ये देखो इसमें मैंने 4th या 5th पॉइंट में ये लिखा है, टू बिगिन विद CET विल कवर रिक्रूटमेंट्स मेड बाय 3 एजेंसीज विद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो पहले का SSC, RRB, IBPS ये सब जो रिक्रूटमेंट कर रहे थे, ये सब अब एक अम्ब्रेला के नीचे आएगा और ये एक पर्पस के लिए काम करेगा। तो इस सब का स्टार्ट कहाँ से होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड ट्वाइस ए ईयर, एक CET टेस्ट होगा। देयर विल बी डिफरेंट CETs फॉर ग्रेजुएट लेवल, 12th पास लेवल, 10th पास लेवल टू फैसिलिटेट रिक्रूटमेंट टू वैकेंसीज एट वेरियस लेवल्स। ठीक है, डिफरेंट CETs होंगे, ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग होंगे, 12th पास के लिए अलग होंगे, 10th पास के लिए अलग होंगे। अब CET विल बी कंडक्टेड इन 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। ये कौन कौन से लैंग्वेज अभी बताया नहीं है, मतलब अपना 8th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उसमें से 12th लैंग्वेजेस में ये होगा। अब टू बिगिन विद CET तो बता दिया पॉइंट मैंने। CET will be held in 1000 centers across India in a bid to remove the currently prevalent urban bias. There will be an examination in every district of the country. अब देखो पहले एग्जामिनेशन कैसे होता था, हमें अगर एग्जामिनेशन देना है तो मेन सिटीज में जाना पड़ता था, तो ये उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन सेंटर बनाएंगे, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा एग्जाम लिखने के लिए। अब CET will be a first level test to shortlist candidates and the score will be valid for 3 years. एक बार लिख दिया तो 3 साल के लिए स्कोर वैलिड होगा। There shall be no restriction on the number of attempts to be taken by a candidate to appear in the CET subject to the upper age limit. Upper age limit जहाँ तक है तब तक कितनी बार भी लिख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन फॉर SC and ST OBC कैंडिडेट्स वो सब जो पहले से है वैसे ही होगा। तो ये रहा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, which of these Indian airports have been approved by the Union Cabinet recently for leasing to a private company? So our answer is option B, 1, 2 and 3 only. Thiruvananthapuram, Kerala, Jaipur, Rajasthan, Guwahati, Assam. Explanation देखते हैं। Union Cabinet on Wednesday approved leasing of 3 airports, Jaipur, Guwahati and Thiruvananthapuram.
थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल के लिए लीज में दिया जाएगा. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज नॉट गिविंग दिस एयरपोर्ट्स परमानेंटली टू द प्राइवेट ऑपरेटर. आफ्टर रनिंग दम फॉर 50 ईयर्स द प्राइवेट ऑपरेटर वुड बी हैंडिंग ओवर द एयरपोर्ट्स बैक टू द एआई. 50 साल के लिए ही लीज में दे रहा है. 50 साल तक एयरपोर्ट का पूरा मैनेजमेंट ऑपरेशन वो लोग कर सकते हैं और इनकम भी ले सकते हैं. पर उसके बदले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल रिसीव 1070 crore एज एन अपफ्रंट अमाउंट फ्रॉम द प्राइवेट ऑपरेटर फॉर लीजिंग द एयरपोर्ट्स एट जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रपुरम. ये देखो 1070 करोड़ पैसे लगेंगे उनके लिए. प्राइवेट ऑपरेटर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1070 करोड़ रुपीस देंगे. एंड दिस फंड विल बी यूज टू डेवलप एयरपोर्ट्स इन स्मॉल सिटीज. जो स्मॉल सिटीज में जो एयरपोर्ट्स है उसी को डेवलप करने के लिए पैसे इस्तेमाल किया जाएगा. अब these 3 airports were among a total of 6 where Adani Enterprises Limited emerged as the highest bidder last year during the privatization process initiated by the AAI. तो एक प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है? अदानी एंटरप्राइजेस है. अदानी एंटरप्राइजेस काफ़ी फेमस है. केरला में जो विलियम पोर्ट, एक सी पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं को मिला था, अदानी एंटरप्राइजेस को. अब देखो दिस 3 एयरपोर्ट्स वेर अमंग ए टोटल ऑफ 6. बेसिकली 6 एयरपोर्ट को लीज में देने का प्लान था. और कौन कौन सा है तीनों को छोड़ के? लखनऊ, Ahmedabad and Mangaluru were approved for handing over to private player, पर the remaining 3 airports were not because of legal cases. कुछ केसेस चल रहे हैं उसमें, इसलिए ये अभी हुआ नहीं है, पर होगा बाद में. अब ये तीनों लीज में दे. क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेस्पेक्ट टू द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ऑप्शन टी 1, 2, 3 एंड 4 चारों ऑप्शन सही है. देखते हैं इसके बारे में. देखो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is under the support of Reserve Bank of India and Indian Banks Association with an aim of consolidating and integrating various systems into nationwide uniform and standard business process that can be used as a retail payment system. देखो बेसिकली यही है सिंपल भाषा में, जितने भी इंडिया में रिटेल पेमेंट है, रिटेल पेमेंट्स हो रहा है, वो सब NPCA ऑपरेट करता है. ये रिजर्व बैंक के अंडर एक कॉर्पोरेशन है, यही पूरा देखभाल करते हैं जितने भी रिटेल पेमेंट हो रहा है ना उसको. अब देखो आपको और समझने के लिए मैं बताता हूँ. नेशनल फाइनेंशियल स्विच ये इसके अंदर आता है. नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है? जो इंडिया के पूरे ATMs को कनेक्ट करते हैं. एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था 2 साल पहले. इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, जितने भी IMPS पेमेंट्स आप लोग करते भी होंगे मोबाइल टू मोबाइल या नेट से भी कर सकते हैं. IMPS पेमेंट जो सेम टाइम क्रेडिट हो जाता है. एफिलिएशन ऑफ रुपे कार्ड्स, रुपे कार्ड्स तो पता ही है, वीसा कार्ड्स, मास्टर कार्ड्स, मैस्ट्रो कार्ड्स, ये सब जैसे रुपे कार्ड भी इंडिया का, वो. नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑपरेशन ऑफ चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम. देखो चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम क्या है? चेक के अंदर एक मैग्नेटिक टाइप रहता है. आप लोग देखे होंगे जो नया नया चेक्स बैंक इशू करते हैं उसमें मैग्नेटिक टाइप्स रहता है, तो वो स्कैन करने से डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है वो. तो ये सब NPCA का अंडर NPCA ऑपरेट करते हैं, राइट. अब देखो NPCA का कुछ प्रोडक्ट्स है, इसमें लिखा है रुपे, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम. बहुत सारों के पास ये ऐप हो सकता है, भीम ऐप, जिसे हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. UPI ये तो बहुत फेमस है. UPI, गूगल पे पेमेंट, सब आजकल UPI यूज़ करते हैं. भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये भी एक पेमेंट सिस्टम है. ये सब NPCA का प्रोडक्ट्स हैं. आप देखो ये न्यूज़ में क्यों है? आज ही RBI रिलीजेस फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स. जो काम NPCA कर रहा था उसको और अच्छी तरह से करने के लिए और एक पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स ला रहा है. ठीक है, कोई भी कंपनी अभी अपना बिड दे सकता है ये काम करने के लिए. पैन इंडिया होगा, ये बहुत बड़ा काम होगा पूरा सिस्टम्स को और अच्छी तरह रेगुलेट करने के लिए. आप देखो रिजर्व बैंक हैज टुडे प्लेस्ड ऑन इट्स वेबसाइट द फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया umbrella entity for retail payments. The framework has been released after due deliberations on comments, feedback received on the draft framework. पहले ड्राफ्ट डाला हुआ था, फिर मतलब कब ड्राफ्ट डाला था? February 10 को साइट में ड्राफ्ट डाला हुआ था, फिर आज जाके फाइनल डाला है. अब देखो द umbrella entity shall be a company. umbrella entity मतलब जो कंपनी इस काम के लिए सामने आएगा, कंपनी ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 4 ऑफ PSS एक्ट 2007, पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट्स कुछ एक्ट है, उसके अंडर ऑथराइज होना चाहिए वो कंपनी. तो मतलब ऐसे उस साइट में देखेगा तो आपको बहुत सारे हैं क्राइटेरियाज जो कंपनी सामने आएगा ये काम करने के लिए. तो बहुत सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना है. तो मेन ये है इट शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ PSS एक्ट एंड अदर रेलेवेंट स्टैट्यूट्स एंड डायरेक्टिव्स, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस एंड अदर गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस. जितने भी स्टैट्यूट्स डायरेक्टिव सब दिया हो उस सबको ठीक तरह से करना है इनको. क्वेश्चन नंबर 4, National Teleconsultation Service of Ministry of Health and Family Welfare has started an e-service for OPD. What is its name? Answer A, e-Sanjeevani.
National Teleconsultation Service of Ministry of Health and Family Welfare is first of its kind online OPD service offered by a country government to its citizen. पहला कंट्री है इंडिया जो ऐसे काम कर रहा है. वो क्या है मैं बताता हूँ मैं. नेशनल टेलीकंसल्टेशन सर्विस एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू पेशेंट इन देयर होम्स. देखो ये कोरोना के टाइम है, कोरोना के टाइम है. अभी देखो इसमें घर में बैठे बैठे आप इलाज करा सकते हो. इसमें क्या हो, वीडियो कॉलिंग होगा, वीडियो शेयर होगा. डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शंस ऑनलाइन दे देंगे आपको. मतलब आपको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. वीडियो के थ्रू डॉक्टर आपका प्रिस्क्रिप्शन पूरा इलाज करेगा. अब ई संजीवनी ओपीडी स्टे होम ओपीडी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक इन मोहाली पंजाब में. साइलिन फीचर्स क्या क्या है इस ई ओपीडी का, ई संजीवनी ओपीडी का. देखो पेशेंट रजिस्ट्रेशन, टोकन जनरेशन, क्यू मैनेजमेंट, ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन विद ए डॉक्टर, ई प्रिस्क्रिप्शन, SMS ईमेल नोटिफिकेशंस, सर्विस बाय स्टेट डॉक्टर्स, फ्री सर्विस. देखो इसमें बहुत सारे हैं. देखो अभी पेशेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, टोकन जनरेशन हो सकता है, क्यू मैनेजमेंट है तो क्यू तो मैनेज होना ही है, तो एक ऑनलाइन सिस्टम में पूरा कंप्यूटराइज्ड है. ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन होगा आमने सामने. तो इसमें इतने सारे फैसिलिटीज दिया हुआ है. तो ये है ई संजीवनी ओपीडी के बारे में. क्वेश्चन नंबर 5, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा and doing acts prejudicial to maintenance of harmony. In which act or code of government of India you can find this statement? So the answer is Indian Penal Code. Indian Penal Code section 153 अल्फा ये कहता है. तो ये आजकल बहुत रेलेवेंट है. आजकल ऐसे गलत काम देश में हर जगह हो रहा है. रिसेंटली बेंगलुरु रेड्स हुआ था, उसमें भी यही हुआ था. अब देखो IPC सेक्शन 153 अल्फा क्या कहता है. Whoever by words either spoken or written और बाई साइंस और बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशंस. तो बेसिकली यही लिखा गया है कि कोई भी रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, कैस्ट और कम्युनिटी, ये सब के बेसिस पर बेसिकली मैं एक रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ, तुम दूसरा कर रहे हो. मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, तुम दूसरा जगह का रहने वाले हो. मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तुम दूसरे कम्युनिटी से हो. मेरा अच्छा है, तुम्हारा बुरा है. ये सब के बेसिस पे दो ऑर्गेनाइजेशन या दो इंडिविजुअल के बीच में हेट्रेड या शत्रुता क्रिएट नहीं करना है. कुछ भी तरह का इसी तरह का क्रिएट करने का या शत्रुता या कम्युनलिज्म को प्रमोट करना ये गलत है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है. कौन सा सेक्शन में? IPC सेक्शन 153 अल्फा में. इसे क्या ऑफेंस से क्या पनिशमेंट मिल सकता है? इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ. 3 साल तक जेल में डाल दिया. Question number 6. In which of the following Arab country, Baraka nuclear power plant, the first nuclear power station in Arabian Peninsula and the first commercial nuclear power station in the Arab world located? Answer है UAE, United Arab Emirates. बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट आजकल न्यूज़ में है, काफ़ी दिन से न्यूज़ में है. वैसे बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द UAE's फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन. UAE का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन द अरेबियन पेनिनसुला में पहला है and the first nuclear power station in the Arab world. Arab world में पहला है. अब it consists of 4 APR-1400 nuclear reactor, 1 operating and 3 mostly completed. Total 4 है, उसमें एक अभी operating है. Total capacity is 5,600 megawatt, which is intended to supply 25% of UAE's energy needs. UAE का energy needs का 25% यही nuclear reactor से होगा. अब साइट कहाँ पे है? घरबिया region of अबू धाबी. अबू धाबी में घरबिया रीजन में है ऑन द कोस्ट लाइन बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड E11 हाईवे 50 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हुआईस. मतलब ये जगह लोकेशन दिया हुआ है. अब द ऑयल रिच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे, ये न्यूज में आया था, दैट इट हैज कनेक्टेड इट्स बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट टू द नेशनल ग्रिड इन ए न्यू फर्स्ट फॉर द अरब वर्ल्ड. अब देखो ग्रिड में भी कनेक्ट कर दिया तो पूरा UAE में अब इलेक्ट्रिसिटी नीड्स इसी से होगा. तो यही लिखा है 25% नीड्स इलेक्ट्रिसिटी नीड से एक न्यूक्लियर पावर से मीट होगा. अब देखो और एक बात मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ. 1-2 हफ्ते पहले बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट जब क्रिटिकलिटी अटेंड किया था, मैंने एक PPT में बोला भी था. अब क्या है क्रिटिकलिटी, और एक बार आपको मैं समझाता हूँ. कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी अटेंड करने का मतलब ये होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है. तो न्यूक्लियर फिशन जब होता है, एक रिएक्शन जब होता है, वो सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज करना चाहिए, तब जाके आगे की चेन रिएक्शन हो. जब सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कुछ रिएक्शन में सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं निकलता है और क्या होता है, चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं करता है, फिर वो आगे नहीं जाता है. तब जब तक
सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज नहीं होते तब तक क्रिटिकलिटी अटेन किया नहीं बोलते। तो क्रिटिकलिटी अटेन किया तब बोलते हैं जब सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी ऑफ न्यूक्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, whose birth anniversary is celebrated as Sadbhavana Divas every year on 20th of August? Answer: Rajiv Gandhi, our former prime minister. Every year on 20th August, the birth anniversary of Rajiv Gandhi is celebrated as सद्भावना दिवस और हार्मनी डे। सद्भावना दिवस भी बोलते हैं 20th अगस्त को और हार्मनी डे भी बोलते हैं। This year on 20th August 2020, we are going to celebrate the 76th birth anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi. Indian National Congress instituted Rajiv Gandhi Sadbhavana Award in 1992, a year after his death. Right? Every year, this day is celebrated in the memory of late Rajiv Gandhi, who was the youngest Prime Minister of India at the age of 40 years. तो youngest Prime Minister of India कौन था? राजीव गांधी. In lieu of paying tribute to his vision for India, on this occasion, contribution to society betterments are made. राजीव गांधी के बारे में कुछ बोलते हैं। राजीव गांधी became Prime Minister at an age of 40 years after the assassination of his mother. इंदिरा गांधी का assassination के बाद ये Prime Minister बने थे। कब से कब? 84 से 89। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था 1986 में, इन्होंने इसको मॉडर्नाइज भी किया था। राइट? और जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम जो इंडिया के हर कोने में है, ये क्या है? रेसिडेंशियल, फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 to 12। ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द 54th प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक? तो आंसर ये लुइस रोडोल्फो अबिनाडर कोरोना। तो नाम तो बहुत ईजी याद करने के लिए, कोरोना। द डोमिनिकन रिपब्लिक कहाँ पे है? देखो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये है, ये अपना साउथ अमेरिका है, ये इधर आता है डोमिनिकन रिपब्लिक। इस ए कैरिबियन नेशन दैट शेयर्स द आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला विथ हैती टू द वेस्ट। राइट? इट्स नोन फॉर इट्स बीचेस, रिसोर्ट्स एंड गोल्फिंग. Its terrain comprises rainforest, savanna and highlands including Pico Duarte, the Caribbean's tallest mountain. तो कैरिबियन का tallest mountain का नाम इधर है Pico Duarte. एंड डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है सैंटो डोमिंगो एंड का करेंसी है डोमिनिकन पेसो। राइट? क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर बोथ 1 and 2। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ। अब न्यूज में क्यों है? रिसेंटली इलेक्शन कमीशनर अशोक लवासा, एक इलेक्शन कमिश्नर था अशोक लवासा, resigned to join the Asian Development Bank as vice president. Right? Election Commission of India is a permanent constitutional body. Constitution of India has vested in the ECI the superintendence, direction and control of the entire process of conduct of elections to the parliament, legislature of every state and to the office of president and vice president. पूरे इंडिया के जितने भी इलेक्शंस बेसिकली ऊपर से प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और पूरे पार्लियामेंट्स का और हर स्टेट का लेजिस्लेटर एमएलएस का, ये पूरे देखभाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। राइट? दे एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी एंड पर्क्स एज अवेलेबल टू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजेस का रिमूवल होता है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल हो सकता है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर वेस्टेड विद पावर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एंड अदर लोकल बॉडीज। जो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटर के नीचे का जितने भी इलेक्शंस होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हैंडल करता है और दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो ईसीआई है, चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया का है, उनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है। Question number 10. Which of the following does not come under the original jurisdiction of the Supreme Court? इसमें से कौन सा है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है? तो आंसर बी है डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड यूनियन टेरिटरी। ये गलत है, देखते हैं कैसे। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड टू ऑल केसेस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स ऑन वन साइड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड में, स्टेट्स ऑफ इंडिया दूसरे साइड में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स ऑन वन साइड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 2-3 स्टेट और दूसरे साइड में और कोई स्टेट्स, और केसेस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। दो स्टेट्स आपस में अगर कोई केस से लड़ रहा हो तब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लागू होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज रिलेटेड टू केसेस विच आर डायरेक्टली ब्रोक टू द सुप्रीम कोर्ट केसेस विच रिक्वायर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जब भी चाहिए हो तब सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट आता है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और
और एक केस है, केसेस रिलेटिंग टू डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स का डिनायल हो रहा हो, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, वैसे हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है, ये भी एक ऑप्शन है, राइट। अगर फंडामेंटल राइट्स के डिनायल हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो जा सकता है, हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है, ये ध्यान रखना। इट इज एम्पावर्ड to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari to enforce them। देखो फंडामेंटल राइट्स के डिनायल अगर हो रहा हो तो ये सब रिट्स इशू कर सकता है। एक मतलब है, ये आपको पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे पूरे एक्सप्लेनेशन। तो ये यूज करके फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स कर सकता है, राइट। तो डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड यूनियन टेरिटरी क्यों गलत है? क्योंकि यूनियन टेरिटरी वैसे भी यूनियन के अंडर है, तो डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड यूनियन टेरिटरी आने का कोई चांस नहीं है। तो वैसे हमारे ये एक्सप्लेनेशन में यूनियन टेरिटरी कहीं नहीं है, तो आंसर बी है, ये गलत है। तो हमारा 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। आप लोगों के मार्क्स और व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस पीपीटी की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।